یہ طریقہ ہوتا ہے میت کے غسل کا۔ یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں، یہ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ دعا کریں کہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں، عمر درازی بالخیر عطا فرمائیں۔ یہ ہم کو سکھانے کے لیے یہاں پر لیٹے تاکہ ان کے ذریعے ہم سیکھیں۔ اب میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک تو پہلے ہم گھبراتے بہت ہیں کہ غسل دینے کیسے جائیں، ہمیں دعا نہیں آتی اور ہمیں فلاں کام نہیں آتا، ہمیں دعا پانی ڈالتے وقت کیا پڑھنی چاہیے، اور اگر بتی جب سلگائی جاتی ہے لبان کیا جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ میت کے غسل میں ایک ہی فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ کتنا فرض ہے؟ ایک فرض ہے۔ میری گزارش ہے آپ تھوڑا کرسیوں پہ آ جائیں گے تو اچھا رہے گا۔ جتنے بھلے آپ 10 منٹ کھڑے ہیں چلے گا، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں، آپ 10 منٹ بیٹھے پھر چلے جائیں، راستہ بلاک نہیں ہوگا۔ تو کتنا فرض ہے میت کے غسل میں؟ ایک فرض ہے۔ وہ فرض کیا ہے کہ پورے میت کے جسم سے پانی کا بہہ جانا، پورے میت کے جسم سے پانی کا بہہ جانا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب میت کو غسل، ایک تو پہلے جب کسی کا انتقال ہو جائے، ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو ہمیں کرنا یہ چاہیے، بہت سارے لوگ ہاتھوں کو میت کے اس طریقے سے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ سائیڈ میں رکھ دیں، یا تو جیسے نماز پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے ہاتھ کو باندھیں، لیکن کنارے ہم چھوڑ دیں ہاتھ کو، اور چہرے کو ہم دائیں طرف ہلکا سا، دائیں طرف تھوڑا سا موڑ دیں۔ اس لیے قبر میں لٹانے کے بعد میت کا چہرہ قبلہ رخ گھمایا جاتا ہے، اور چونکہ مرنے کے بعد جسم میں تھوڑی اکڑ آ جاتی ہے، اکڑ جاتا ہے بدن، تو چہرہ قبلہ رخ ہو نہیں پاتا ہے۔ تو پہلے ہی ہم جب انتقال ہوا تو چہرہ ہلکا سا قبلہ رخ کر دیں تاکہ قبر میں لٹائیں تو میت کا چہرہ پہلے سے ہی قبلہ رخ رہے۔ اب میت کی جب غسل کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگربتی آپ نے دیکھا ہوگا یا لبان اس جگہ پہ سلگائی جاتی ہے اور خوشبو پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی میت کے انتقال کے بعد، کسی کے انتقال کے بعد جسم کے اندر جو ہے اعضاء بدن کے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پہلے سے کوئی بیماری میں ملوث ہے تو اس کے جسم سے کبھی پانی بہتا ہے، کبھی اعضاء خراب ہوتے ہیں، تو مہک سی آتی ہے، بدبو سی، تو وہاں پہ ماحول خراب نہ ہو اور کوئی چڑ سی محسوس نہ کرے، اس لیے پہلے سے ہی خوشبو پھیلا دی جاتی ہے تاکہ اس انوائرمنٹ میں، اس ایٹماسفیئر میں ہم آرام سے میت کو غسل دے سکیں۔ اب میت کو غسل دینے کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ اتارے جائیں، لیکن چونکہ میت ہے، میت سنتی بھی ہے، میت کو احساس بھی ہوتا ہے، لیکن میت اس پر کچھ جواب نہیں دے پاتی، چونکہ اب وہ مر چکا ہے، بندہ مردار ہو چکا ہے، میت ہو چکا ہے۔ اب ہم نے لٹایا تو جسم سے کپڑے اتارنے ہیں، تو جس طرح زندے کے بدن سے اتارتے ویسا نہیں اتارا جائے گا، کینچی لے کر کے کاٹ کر کے اتارا جائے تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو۔ عموماً یہاں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ایک سفید لباس لیتے ہیں اور لے کر کے پہلے کرتا تو اتار دیتے، کرتا یا شرٹ جو بھی ہے وہ کینچیوں سے کاٹ کر کے اسے اتار دیا جاتا ہے، اور ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ایک سطر کا حصہ ہوتا ہے اسے ڈھانک دیتے ہیں، اور پھر پیجامہ یا پینٹ اتارا جاتا ہے، اس کے انڈر گارمنٹس پھر اتارے جاتے ہیں تاکہ سطر ظاہر نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں بہت بڑی خرابی یہ ہے، ہم جو کپڑا استعمال کرتے ہیں یہاں پر وہ اکثر سفید رنگ کا ہوتا ہے اور کفن کا ہی کپڑا ہوتا ہے، اس پہ پانی کے 2 بوند پڑتے ہیں، سطر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، بلکہ عقیل بھائی جہاں پر رہتے ہیں افریقہ میں، وہاں پر اکثر ڈارک کلر کا کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر کسی کے انتقال میں شریک ہو، دیکھیے اب یہ بھیگا بھی نہیں ہے، اس میں سے ہاتھ نظر آ رہا ہے، تو میت کا سطر کیسے چھپے گا؟ اس پہ پانی پڑے گا تو اور ظاہر ہوگا، تو سطر پوشی ہو نہیں پائے گی۔ تو اس لیے جو کپڑا اوپر رکھ کر ہم غسل دیتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، وہ کپڑا موٹے کپڑے کا ہو، موٹا کپڑا ہو، اور ہو سکے تو کالے رنگ کا اور ڈارک کلر کا ہو جس سے سطر ظاہر نہ ہو۔ اب یہ ہم نے رکھ دیا، اب پیجامہ اتار دیا جاتا ہے یا ٹراؤزر اتار دی گئی۔
अब मैयत है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा कराया जाता है। इस्तिंजा से मुराद उसके प्राइवेट पार्ट्स को धोया जाता है, और वो धोने की सूरत ये है कि हम हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, और ग्लव्स पहनने के बाद और फिर जो है अगर ग्लव्स ना मिले तो कपड़े को हाथ में लपेटा जाता है, और इस तरीके से कपड़े को हाथ में लपेट लेते हैं, और लपेटने के बाद रुई कपास जो होता है उसका बंडल अपने हाथ में ले लेते हैं, और लेने के बाद फिर जो है इस्तिंजा कराया जाता है। इस्तिंजा कराने की सूरत ये है कि ऐसे इस तरीके से चादर को उठाते हैं, और जो शर्मगाह की जगह होती है, कभी कभी इंतकाल के वक्त जो है गलाजत जिस्म से निकलती है तो उसे साफ किया जाता है, हाथ अंदर डाल करके कपड़े के, ठीक है, लेकिन उसके अंदर झांक करके साफ नहीं करना, देखना नहीं है ना। और फिर वो कपास जो उसे किनारे एक थैली में डाल देना है, अब फिर वापस दूसरा लेना है, गीला करना है उसे, और फिर साफ करना है। इस तरीके से आगे और पीछे की शर्मगाह दोनों को हम साफ कर दें। इस्तिंजा हमने दे दिया। अब मैयत को वुजू कराया जाता है। वुजू कराने की सूरत यह है कि सबसे पहले मिसवाक यानी दांतों को साफ किया जाता है। तो हम कपास लेंगे, और कपास लेकर या कपड़ा लेकर के जिस तरह हम तेल में बाती बनाने के लिए उसे रोल करते हैं, वो रोल करके हम उसे भिगाएंगे, और भिगाने के बाद हम मैयत के मुंह को खोलकर उसके होठों को साफ करेंगे, और दांत जो सामने नजर आते हैं हम उसे साफ करेंगे। और उसके बाद फिर जो है दूसरा कपड़ा या तो कॉटन कपास के रोल को लेकर बाती जैसा बनाकर मैयत की नाक के दोनों नथनों को उसको साफ करेंगे, और फिर वापस से साफ दूसरा कपड़ा लेकर भिगाकर फिर साफ किया जाएगा, और फिर चेहरे पर पानी डालकर धोया जाएगा। चेहरे पर हमने पानी डाला और धो दिया, चेहरा धुल गया। अब इसके बाद गुस्ल देना है। तो गुस्ल का तरीका फिर यही है कि दाएं तरफ आप पानी बहाएं, चेहरा धोएं, चेहरा धोने के बाद दोनों हाथों को, दाएं हाथ को कोहनी समेत धो दिया, फिर बाएं हाथ को कोहनी समेत धो दिया। अब दाएं पैर को धो दिया, मसा करेंगे। मसा हमने किया जैसे अपना मसा करते हैं, मैयत का मसा कर दिया। अब फिर दाएं कदम को 3 मरतबा धो दिया, बाएं कदम को 3 मरतबा धो दिया। और ये पैर अक्सर जिसका इंतकाल होता है फैल जाते हैं, तो जब इंतकाल हो तो दोनों करीब करके एक पतले चिंदीसों से बांध दिया जाता है ताकि पैर फैले नहीं, ठीक है। अब ये वुजू हो गया है। अब गुस्ल देने के लिए आप पानी लें, और पानी को दाएं तरफ से बहाएं, बाएं तरफ से बहाएं, पूरे जिस्म से बहाएं। साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने साबुन का इस्तेमाल किया और पूरे जिस्म से अच्छे से पानी को बहा दिया, साबुन की चिकनाहट पूरी चली गई। और उसके बाद दाएं करवट उसे घुमा करके, अब ये आदमी जिंदा है, भले आंख बंद है, जिंदा है, लेकिन आसानी है, लेकिन मैयत को टर्न करने के लिए 2 से 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब साबुन लगाया हमने, फिर पानी को प्रेशर से नीचे साफ किया तो ताकि साबुन की चिकनाहट चली जाए। फिर बाएं तरफ करवट ली जाएगी और इस तरफ साबुन लगाकर पानी को प्रेशर से डाला जाएगा ताकि साबुन की चिकनाहट चली जाए, और इसे शर्मगाह को छुपा कर रखा जाए ताकि सत्र जाहिर ना हो मैयत की। अब इस तरीके से हमने पूरा मुकम्मल गुस्ल दे दिया है। गुस्ल पूरा मुकम्मल मैयत का हो चुका है। कपड़ा भीगा था, अब सूखा कपड़ा लेकर के उसके ऊपर हम डाल सकते हैं, इस कपड़े को किनारे कर सकते हैं। अब ये मैयत का गुस्ल हो चुका है। अगर आपको इन बातों में से कुछ समझ में नहीं आई बातें, उम्मीद तो रखता हूं कि आई है। अगर आप कहेंगे आप कंफ्यूज हो गए कि पहले मैं क्या कराऊं, पहले हाथ धुलाऊं, पैर धुलाऊं, पहले क्या करूं, तो आप पूरी मैयत के जिस्म से पानी को बहा देंगे, गुस्ल हो जाएगा इंशाल्लाह, गुस्ल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? अब मैयत जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, अब मुकम्मल होने के बाद अब क्या करना है, मैयत को उठाया जाता है और उठाकर इस तरीके से हल्का सा पेट दबाया जाता है कि अगर गलाजत कुछ और रास्ते में है तो बाहर आ जाए।
वरना कफन वगैरह खराब ना हो जाए। 2 मरतबा किया और फिर तीसरी मरतबा किया, ये 3 मरतबा हो गया। और फिर इस्तिंजे की जगह पर पानी डाल दें, कपड़ा इस तरीके से लपेट के, ग्लव्स लेकर के कपड़ा रुई में लेकर के भिगा कर देखें, अगर गलाजत है तो ठीक है, अगर कपड़े में नजर नहीं आती यूं ही पानी मार दे। अब मैयत का गुस्ल मुकम्मल हो चुका है। अब क्या करना है, मैयत को अब हमें कफन पहनाना है। तो याद रखिए, कफन पहनाने के लिए जो है कफन अच्छे क्वालिटी का हम देना चाहिए हमें, वरना होता ये है कि इस्तेताअत तो अच्छे कपड़े लाने की है, लेकिन फिर कब्रिस्तान से वही कपड़ा लेकर के आते हैं कि जिसको खोलो तो उसका चूना निकलता चला जाता है। तो ऐसा ना करें, अच्छी क्वालिटी का कफन दे अपने मैयत को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। अब ये कफन देने की सूरत ये है कि मर्द के लिए सुन्नत कफन कितना है, 3 है। कितना है, कितना है, 3 है। क्या क्या है उसमें, एक तो लिहाफ है जिसको लिफाफा भी कहा जाता है, जो सबसे पहले बिछाया जाता है। दूसरा तहबंद है जिसको इजार भी कहा जाता है, और तीसरा कमीज है। ये 3 कफन मर्दों के लिए है और सुन्नत ये 3 कफन है। अगर कई हालतें मजबूरी ऐसी है कि उसे कुछ ना मिला तो एक कपड़ा पूरे बदन को लपेट देते हैं, वो एक कफन वो भी होता है। लेकिन हमें आज वैसे हालात नहीं है, तो सुन्नत पर अमल करें। मैयत को 3 कफन देना है मर्द को, तो ये 3 कफन है। कभी कभी किसी के जिस्म में ऐसा होता है कि हवा भरती है और पेट फूलता है, तो अक्सर कानों में, नाक में कपास लगा दिया ताकि अंदर हवा ना जाए, और पेट पर कोई चीज कपड़ा चौड़ा बांध दिया जाता है। तो उसकी भी इजाजत है कि अगर कुछ परेशानी, पेट फूल रहा है तो कपड़ा बांध दें, और क्या कुछ चीज वजन चीज रखी जाती है ताकि अंदर हवा ना भर पाए, तो वो भी करने की इजाजत है। और आंख खुली हो, जब इंतकाल होता है तो आंख खुली रहती है, क्योंकि फरमाया गया कि रूह इस तरफ से जाती है, सर के तरफ से। तो मैयत अपनी रूह को, मुर्दा देखता है जाते हुए इंसान, और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। तो उसे बंद करे दुआ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इस तरीके से मैयत को हमने गुस्ल दे दिया। वक्त बहुत कम है, कफन बिछा करके आपको बताया जाएगा कफन क्या क्या होता है, कैसे होता है। हाँ। पहले तो एक कफन होता है नीचे जिसको लिहाफ कहा जाता है। उसकी जो लंबान होती है सबकी यकसा नहीं होती है। जैसे अगर मैं लंबा हूं, ये आपको दिखाने के लिए हमने एक कपड़ा लिया है, वरना ये ना सोचे हमको तो कह रहे थे कि अच्छा कफन दो और ये तो सस्ता लेकर के आए। तो ना यहाँ पर मैयत है और ना ये कफन है, हम सिर्फ आपको सिखाने के लिए इसे बनाए हैं। तो ये कपड़ा हल्का है, आप अच्छी क्वालिटी का कफन इस्तेमाल करें। कफन जो हम नीचे लिहाफ बिछाया जाता है, जिसको लिफाफा भी कहते हैं, उसको जो है उसकी लम्बान, जिसका इंतकाल हो गया है, उससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सर पर बांध दिया जाए और पैरों के तरफ बांध दिया जाए। और याद रखिए उसकी चौड़ान ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उसके जिस्म का हिस्सा जो है, उसकी चौड़ान जो है हम लपेटे तो मैयत पूरी तरीके से इस तरीके से अंदर लपट जाए, ओवरलैप हो जाए, एक के ऊपर एक चढ़ जाए। और अगर छोटा है तो उसमें और कपड़ों का जोड़ लगाकर उसे हम चौड़ा कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे होता है मामला कि घर की औरतें बोलती है नहीं मशीन से सी नहीं सकते, सिर्फ हाथ से ही सीना है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप मशीन से भी सीकर इसकी चौड़ान बढ़ा सकते हैं। तो पहले उस लिफाफे को बिछाया जाएगा और उसके बाद तहबंद बिछेगी। एक बहुत बड़ी हम जो है हमारे अंदर कमी है कि हम तहबंद जो है वो मैयत की कमर से लेकर के घुटने तक का रखते हैं, लेकिन ये गलत है। बाहरी शरीयत में मैयत की तहबंद का साइज बताया गया है सर की चोटी से लेकर पैर तक, उसे तहबंद कहा जाता है। उसमें खुलासा भी कहा जाता है तहबंद, लेकिन हकीकत में वो उसे रैप किया, लपेटा ही जाता है लिफाफे की तरह, तो इसे तहबंद कहते हैं।
अब कहीं पर भी इंतकाल में हम जाएं, अगर गुस्ल देने वाला वो कफन काट रहा उसे कह दे कि तहबंद जो है कमर से लेकर टखने तक नहीं बल्कि सर से लेकर के पैर की चोटी तक, पैर की एड़ी तक, ये साइज तहबंद का होना चाहिए। और लोग क्या करते हैं, इसके पहले कमीज बिछाते हैं और फिर तहबंद बिछाते हैं, जो गलत है। बल्कि पहले हमें तहबंद बिछाना है और उसके ऊपर कमीज बिछाना है। फिर जब मैयत को पहनाएंगे तो पहले कमीज आएगी और फिर तहबंद लपेटेंगे और फिर लिफाफा लपेटा जाएगा। और इस तरीके से कफन की कमीज की साइज होनी चाहिए कि जो लंबान आगे है, यानी मैयत के घुटने के नीचे तक, उतनी ही पीछे होनी चाहिए। अभी इसमें हमने बहुत शॉर्ट किया है पीछे का हिस्सा, हाँ वो मत देखें आप। हमें ये देखना है कि आगे से भी जितना लंबा है पीछे से भी उतना ही लंबा कमीज का साइज होना चाहिए। अब इसको हमने बिछा दिया। अब इस तरीके से आया समझ में आपको। पहले क्या बिछाया जाएगा, क्या बिछाया जाएगा पहले, नीचे क्या बिछाया जाएगा पहले, लिफाफा, उसके ऊपर तहबंद। तहबंद की साइज क्या रहेगी, सर की चोटी से लेकर पैर की एड़ी तक, टखनों तक, ठीक है, ये साइज तहबंद की। और उसके ऊपर कुर्ता, कमीज, कमीज की लंबान जो नॉर्मली पहने जाते घुटने के नीचे टखनों तक, ये पिंडली तक, तो उस तरीके से आगे पीछे दोनों सेम साइज होगी। अब इस पर जो है उसके बाद एक जगह कफन तैयार किया जाता है और गुस्ल के बाद मैयत को उस निलाने वाले स्टैंड से उठाकर उस पर लिटाया जाता है। और ऊपर अब्दुल्ला भाई, और ऊपर। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम कुर्ते को पहना देंगे। मैयत को हमने निलाया है तो उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है जो उसके सत्र को छुपाता है। अब हमने उसे लिटाया, कपड़ा हटाएंगे नहीं, पहले कुर्ता पहना दिया जाएगा। कुर्ता पहनाने के बाद जब उसका जिस्म कवर हो गया, फिर इस तरीके से हम जो है उस कपड़े को हटा देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, काफूर होता है जिसको कैंफर भी कहते हैं, उसको घुटनों में और हाथों में, कोहनियों में, जिस्म पे जो है अच्छे तरीके से लगा दें। इवन जब गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल का आखिरी पानी जो है हम गर्म करते उसमें भी काफूर डाल करके गुस्ल दे दें। काफूर को कफन के अंदर भी हम छिड़क दें, उससे जो है कीड़े मकोड़े करीब में नहीं आते हैं। अभी हमने कुर्ता पहना दिया, उसके बाद क्या लपेटेंगे, तहबंद। तहबंद का भी साइज चौड़ान में होना चाहिए इतना कि एक के ऊपर यहां से ऐसा, ये सर से लेकर के पैर तक होता है, ठीक है, ये छोटा है लेकिन सर से लेकर पैर तक, और ये चौड़ान ऐसी के ऊपर एक चढ़ जाए। हम उमूमन कपड़ा इसमें जो है बाएं तरफ हमें मोड़ना है और फिर दाएं तरफ मोड़ना है। दाया लेफ्ट के बाएं के ऊपर आएगा कपड़ा, इसको लपेट दिया। अब लिफाफा, आखिरी कफन का हिस्सा, इसको पहले बायां हिस्सा लपेटना है और फिर दायां हिस्सा हमने लपेट दिया। अब देखिए यहाँ इतना छोटा है, क्यों, ताकि इसको एक बांध दिया जाए, वो कोने बांध दिया जाए, दरमियान में एक चिंदी से इसकी चिंदी निकालकर साइड में बांध दिया जाता है, ठीक है। ये कफन का मुकम्मल तरीका हो गया। बांधने के बाद ये थोड़ा खोल दिया जाता है ताकि घर वाले आखिरी ज़ियारत कर ले। लेकिन होता ये है कि औरतों का भी जनाजा है तो गैर मर्द उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं, मर्दों का जनाजा है तो गैर औरतें आती ज़ियारत के लिए, तो खुदारा ऐसा ना करें। अब ये सिलसिला कब मुकम्मल हो चुका है कफन का। अब आप मुझे बताइए, क्या ये बहुत मुश्किल काम है, क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं। तो हम पीछे क्यों हटते हैं? एक मरतबा मुझे सेंटा क्रूज से फोन आया कि अब्दुल कदीर भाई आप आ सकते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ पे गुस्ल देने वाला कोई नहीं। मैंने कहा करीब की मसाजिद में देखो, बोले एक मस्जिद है और वहाँ के बांगी साहब कहीं बाहर गए हुए हैं। तो हैरत की बात हुई, इतने बड़े गोलीबार वाले इलाके में जहाँ आबादी इतनी मुसलमानों की है, उसमें कोई एक बंदा ऐसा ना था जो मैयत को गुस्ल दे सके। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस चीज का ख्याल रखें और याद रखें गुस्ल जरूरी है। अगर गुस्ल नहीं दिया गया
तो नमाज जनाजा भी नहीं होगी, नमाज जनाजा भी नहीं होगी। इसलिए गुस्ल देना निहायत ही जरूरी है। ये बहुत ही मुख्तसर में आपको आज यहाँ बता दिया गया। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो हम जो है हलकों में या फिर मौला अली दरगाह मस्जिद के नीचे सहन में अच्छे तरीके से बराबर साइज का कफन लेकर इंशाल्लाह आपको बताया जाए किस तरीके से जो है कफन पहनाया जाता है। और इस तरीके से इसमें शरीक होना, जनाजे में शरीक होना, अल्लाह ताला जब तक बंदा जनाजे में शरीक होता है तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमाता है। बंदा 40 कदम चलता है उसे गुनाहों को माफ फरमाता है, 40 साल के गुनाहों को माफ फरमाता है। और फरमाया गया गुनाह कबीरा को भी खुदा इस अमल के सदके माफ फरमाता है। और जब जनाजे को हम लेकर जाते हैं कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के लिए, तो नमाज जनाजा के वक्त अक्सर शोर मचता है, कितनी सफ़े हुई, 7 हो गई, 15 कर दो, 7 हुई, 8 हुई, नहीं, थोड़े जन पीछे जाओ, 9 कर दो। हमारे शरीयत में फरमाया गया किसी की नमाज जनाजा में अगर 3 सफ़े बन गई अल्लाह ताला उस बंदे की मगफिरत फरमाता है। तो लिहाजा अब वहां पर नमाज जनाजा अदा करें। अदा करने के बाद मैयत को जब दफनाया जाता है, दफनाते वक्त जो है उसमें अहदनामा शिजरा वगैरह रखा जाता है, वो रखे। और जब मैयत में बरगा लगाया जाता है, चटाई लगाई जाती है और जो मिट्टी डालते हैं दुआ पढ़ते हुए डाले, मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और फरमाया गया उतने देर वहां पर खड़े रहे जितने देर तक एक ऊंट के जानवर को, ऊंट को ज़बा करके उसके गोश्त को तकसीम करने में जितना वक्त लगता है उतने देर हमें वहां पर खड़े रहकर जिक्र व अस्कार करना चाहिए। कब्र में जब लिटाया जाता है तो अक्सर कुल की मिट्टी जमा की जाती है, तो उसका तकिया बना दिया जाता है ताकि उसके कुल के फयूजु बरकत मिले। और फिर और मिट्टी लेकर के नीचे रखा ताकि दाएं तरफ जो है चेहरा जो है मैयत का रहे दाएं तरफ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो तो बंदा अदब के साथ हुजूर की बारगाह में पेश हो सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही मालूमाती चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि और डिटेल में हमें सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा और दिलचस्पी के साथ इन चीज़ों में हिस्सा लें। जहाँ कहीं भी मैयत हो रही हो आप शौक़ से वहाँ पर जाएं। अगर पहली मर्तबा में आप गुस्ल नहीं भी दे रहे हैं तो शामिल हो जाए, तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या हमने सीखा है और क्या हम देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जब मैयत किसी का वक्त करीब होता है तो हमें पता चल जाता है भाई बड़ी उम्र है या बीमार है या बस आखिरी वक्त है, तो उस वक्त जो है कलमे तैयबा का विर्द करना ये भी ज़रूरी है। हम कलमा पढ़ते रहें, मैयत को ना कहें पढ़ने के लिए, हम उसके सामने कलमे तैयबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आई थिंक मजमा झूम करके अगर एक